कर्म अर्थ काम मोक्ष અને ભક્તિ આ સમસ્ત નિત્ય અને કામ ભેદના પ્રત્યેક પંચવિધ વિભાગમાં અંગ રૂપે દેશ કાલ દ્રવ્ય કર્મ કર્તા મંત્ર જોડાઈ જાય છે. પાંચમો મુદ્દો, સમસ્ત પુરાણોમાં દર્શાવેલા અસંખ્ય ઉપાખ્યાનોથી તેમજ અનેકવિધ દર્શાવેલી વ્યવસ્થાઓથી પ્રત્યેક પંચવિધ વિભાગમાં અંગ રૂપે દેશ કાલ દ્રવ્ય કર્મ કર્તા મંત્ર જોડાઈ જાય છે. પાંચમો મુદ્દો, સમસ્ત પુરાણોમાં દર્શાવેલા અસંખ્ય ઉપાખ્યાનોથી તેમજ અનેકવિધ દર્શાવેલી વ્યવસ્થાઓથી એક સાર સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે કે જે અતિ સૂક્ષ્મ પદાર્થને સમજનારા વિવેચકો આપણને ભગવત ભક્તિના રૂપથી બતાવે છે. છઠ્ઠું, સાત્વિક રાજસ તામસ ગુણ ભેદ પ્રમાણે તે પુરાણોના અતિ વિસ્તૃત વર્ણનનું પ્રયોજન પણ માત્ર એટલું જ છે. પુરાણો ત્રણ પ્રકારના છે. સાત્વિક પુરાણો, રાજસ પુરાણો અને તામસ પુરાણો, એ યાદ રાખજો. અને આ જે પંચવિધ પુરુષાર્થ છે ને એના પણ પછી બે ભેદ છે. એ તમે સાંભળ્યું કે ના આવ્યું એમાં? એ આવી ગયું પંચવિધ. હા, નિત્ય અને કામ્ય, એટલું યાદ રાખજો. એટલે ચતુર્વિધ પુરુષાર્થના પણ ભેદ બે પ્રકારના થશે, નિત્ય અને કામ્ય. એટલે નિત્ય ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ અને કામ્ય ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ. નિત્ય ભક્તિ અને કામ્ય ભક્તિ, એ રીતે એનો આખું ચાર્ટ બનાવીને જ પછી આપીશું તમને. સાત્વિક રાજસ આ બાલબોધનું સત્ર આપણું સમાપ્ત થઈ જશે. હવે આપણને આગળનો ગ્રંથ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનું હજી મને એક વ્યાખ્યાન સહિત હજી એક સત્ર કરવું છે મને, પણ એ આ ક્રમમાં કદાચ ન લઈએ તો પછીથી જે પુષ્ટિપ્રવાહ મર્યાદાનું જે સત્ર આવશે તે વખતે આના બચેલા જે બે ત્રણ ચાર ચાર્ટો છે એ તૈયાર કરાવીને હું લાવીશ અને એ વખતે બધાને ઉપલબ્ધ હું કરાવી દઈશ કે જેથી આ ફાઇલિંગ આપણું આ જે આ વખતે અત્યારે જે આપ્યું છે ને એની સાથે એ કમ્પાઇલ થઈ જાય. અને પરફોરેટેડ કરાવીને જ લાવીશ કે જેથી એને આ स्पाइरल बाइंडिंग में चढ़ावी शकाय. ये स्पाइरल बाइंडिंग में लगभग यही लिए रखवाऊँ कि हमें अपन एडिशन कर सकें पीछे से. સાત્વિક રાજસ તામસ ગુણભેદ પ્રમાણે તે પુરાણોના અતિ વિસ્તૃત વર્ણનનું પ્રયોજન પણ માત્ર એટલું જ છે કે જો ભગવદ ઈચ્છા તે પ્રમાણે અવિદ્યાનો સંબંધ અને ત્રિવિધ ગુણ પ્રકારથી તે ગુણ પ્રધાન પ્રકૃતિ જો મનુષ્યને સાત્વિક ઉપદેશ પ્રમાણે સાત્વિક માર્ગે વિકાસ સાધવા ન દે તો છેવટે તામસ પ્રધાન સ્વભાવ માટે નિર્દેશાયેલા ઉપદેશો આચરણ કરવાથી તમો ગુણની નિવૃત્તિ પામી તે જ પ્રમાણે રજોગુણની નિવૃત્તિ પામી છેવટે જન્મ જન્માંતરે પણ સાત્વિકતા પ્રાપ્ત કરી સત્વ પ્રધાન વૈષ્ણવ બની પોતાના ઉત્કર્ષ અને પોતાના ચરમ ઉત્કર્ષ વખતે સ્વસ્વભાવ અધિકાર પ્રમાણે નિર્ગુણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ રૂપી ફલને પ્રાપ્ત કરી લે. हो गया? आप मुझे पूरा करिए आराम से. मनुष्य मात्रना ये कागज मिलेंगे ही तुमको अभी कल परसों में, पर नहीं जो समझ में आते हो वो यह वक्त पूछ लीजिए. और हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मनुष्य मात्रना उद्धार माटे ज महाभारत તે આ ઇતિહાસના રૂપમાં પણ શાસ્ત્રનો સાર જ પ્રગટ કરવા માટે જ રચવામાં આવ્યો છે કે જેથી અધિકાર રહિત જીવોનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકે. આ વાત પુરાણો સાથે જે ઇતિહાસ અને એ મેઇન ચાર્ટમાં જોડાયેલા છે ને એક વખત દૃષ્ટિપાત કરો એટલે એનો સંદર્ભ શોધી લો. સૌથી પહેલા નંબરનો ચાર્ટ મોટું માસ્ટર ચાર્ટ જે છે ને એને કાઢો તમે. देखो वहां के साथ क्या जुड़ रहे हो.
इतिहास, रामायण, महाभारत इत्यादि जुड़ रहे हैं ना, वो बस वो सेक्शन के लिए अब ये बात आ रही है. હવે આ જે નોટ છે, ફાઇનલ નોટ, આ મહાભારત ઇતિહાસ અને ઇતિહાસમાં તો પુરાણો આવી ગયા આપણા એકચ્યુઅલી તો, પણ મહાભારત અને રામાયણ વગેરે માટે આ વસ્તુ જશે. ધ્યાન રાખજો. ઉપયુક્ત ઇતિહાસમાં બતાવેલા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ કલ્પભેદ હોવા છતાં શ્રી ભગવાનના જ્ઞાનાવતાર શ્રી વ્યાસ આપણને આ કલ્પમાં પણ દર્શાવે છે. તેથી ગીતા અને તેનો વિસ્તાર શ્રીમદ ભાગવત બાબતે કોઈ પણ જાતનો સંદેહ રાખવો નહીં. 8મો છેલ્લો મુદ્દો, પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવતનું અપ્રતિમ અને અદ્વિતીય સ્થાન સમજવું. ખરેખર વર્તમાન સમયમાં એટલે કે કલયુગમાં શુદ્ધિ, સંપાદક, કાલ વગેરે ધર્મને ઉત્પન્ન કરનારા હેતુઓનો અભાવ હોવાથી વેદ, સ્મૃતિ તથા અન્ય પુરાણોના સર્વે અર્થો એટલે કે પ્રયોજન સહિત સાધનો પ્રાયઃ નિરર્થક બની ગયા છે. માત્ર કાલ વગેરે સાધનોની અપેક્ષાથી રહિત ફલની દ્રષ્ટિથી તેમજ સાધનની દ્રષ્ટિથી સર્વ અધિક સુગમ અને ફલપ્રદ શ્રીમદ ભાગવત જ છે. फाइनली भागवत की महत्ता को ख्याल आयो अपन. પ્રમાણના 3 સેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગયા આપણા. શ્રુતિ પ્રકરણનો કંઈક આપણને એક વિહંગમ ખ્યાલ આવ્યો, એક એની રૂપરેખાનું, આઉટલાઇનનું. શ્રુતિ પ્રકરણની કંઈક રૂપરેખા આપણે સમજી શક્યા અને પુરાણ પ્રકરણની રૂપરેખા સમજી શક્યા. આટલું પણ ન સમજાયું હોય તો પ્રમાણના સેગમેન્ટમાં, પ્રમાણના વિભાગમાં આ 3 નામના બીજા પેટા વિભાગ છે, એટલું તો સમજીએ આપણે. એક શ્રુતિ નામનું, એક સ્મૃતિ નામનું અને એક પુરાણ નામનું. ઓકે, આટલું તો ખ્યાલ આવ્યો ને. જ્યારે સર્વશાસ્ત્રની વાત કરી રહ્યા છીએ, જેના ઉપર આપણા બધા પુરુષાર્થો ટકી રહ્યા છે. હવે વેદાંગ, એ વેદાંગને હું તમને થોડુંક ખ્યાલ આપી દઉં, એને મુદ્દા તમે નોટ કરી લો. પહેલા નંબરનો ચાર્ટ જરા ખોલી લેજો સામે, એટલે ખ્યાલ થોડુંક તમને સહાયભૂત રહેશે. कभी कभी तुम सबन को समझाते हुए मैं अपने आवर्तन को भाव रखूं कि मेरा आवर्तन ठाकुर जी करा रहे हैं. मोको ऐसे जो है स्ट्रांग हेडेड स्टूडेंट्स दिए हैं कि वो खुद तो समझे कि ना समझे, पर मोसू कहेंगे पहले तू आवर्तन कर ले. चलो, वैसे एक बात कहूं कि मुझको मेरे सारे छात्रों से स्नेह है, और स्नेह है ऐसा ही नहीं, मैं उन पे गौरव रखूं. ये मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं. जैसे हो, जहां हो, तुम मुझको सब प्यारे हो. देखो वहां वेदांग पे थोड़ा ध्यान दो. वेद के अंग निगम के साइड पे डाबी बाजू वेदांग करके 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखे हैं, उन पे जरा ध्यान दे दो. देखो एक तो या आज વેદાંગનો ચોથો વિભાગ છે પ્રમાણના અંતર્ગત. ખ્યાલ આવી મારી વાત?
એમાં એક તો આ 6 વેદાંગ જે છે, વેદના અંગ, એનું સ્વરૂપ વર્ણવ્યો છે, એનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એક વાત, ઇઝ ઇટ ઓકે? નંબર 2 લખો, ઉપર વેદમાંથી ઉપવેદ બતાવ્યા છે મેં, જે નીલા એમાં છે, બ્લુ ઇંકમાં છે, નીલી શાહીમાં હે, જો ગાંધર્વ વેદ, ધનુર્વેદ વગેરે. એટલે ઉપવેદોનું સ્વરૂપ અને એનું વિવરણ આપ્યું છે શ્રી મહાપ્રભુએ. આ 2 મુદ્દા થયા, बराबर. तीसरी बात, जो काव्य है, देखो एक बात समझो मेरी बात, 1-2 मिनट में समझाऊं. शास्त्र में उपदेश के 3 प्रकार मिले हैं मुख्य रूप से. एक तो राज आज्ञावत, एक मित्र की तरह, और एक स्वयं की जो अर्धांगिनी है, प्रिया है, वा की तरह. तो वेद की जो आज्ञा है वो राजवत है. वेद तुम्हारा कोई को मोहताज नहीं है, तो वो तुमको समझाने को प्रयास नहीं करे. जब लॉ डिक्लेयर होवे ना, तो बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाए. लॉ इज प्रोमलगेटेड, लॉ इज जस्ट पुट इनटू द प्रैक्टिस एंड वन हैज टू ओबे. तो लॉ को हमेशा प्रोमलगेशन होवे, वो को डिक्लेरेशन होवे कि दिस लॉ इज डिक्लेयर्ड. तो वेद की आज्ञा राज आज्ञावत है. और शास्त्र जो है यानी आगम, आगम अपन को समझावे, थोड़ा मित्र की तरह समझावे, बाकी लाभ हानि, प्रोज एंड कॉन, सारी बात समझा के अपन को कहे कि भाई देख, ऐसे ढंग से नहीं करना चाहिए. और सबसे होशियार जो विवेकी नारी होए, उनको धीरज, पहले तो धैर्य कैसे रखनो उनसे सीखनो. वो दे वुड गो ऑन वॉचिंग कि राइट टाइमिंग कब है, और सही समय पे. वो तुमने कभी क्रिकेट को कोई जानकार अच्छे हों और जिनको रुचि हो कमेंट्री सुनने में और देखने में, आजकल टीवी पे कोई भी शॉट के बहुत खूबसूरत शॉट होने में टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर बॉल के सही अंदाज को हम पहचान सके कि वो ओवर द आर्म है या अंडर द आर्म है, कौन से ढंग से आ रही है, कहां से, और वो वह गेंद की गति को खेलते खेलते अनुमान लगे, ये कोई पढ़ने के विषय नहीं है. वह वक्त यदि बैट के मूवमेंट की परफेक्ट अगर टाइमिंग हो गई, तो एक स्मॉल टच वह बॉल को चौका और छक्का पे पहुंचाने में बहुत सही यानी समर्थ बन जाएगी. और फ्रिक्शन सेकंड्स के यदि टाइमिंग चूक गए, तो वही की वही शॉट हमको कट आउट करा सके. ये परिस्थिति है. सो टाइमिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब अगर वाकू समझ है कि ये बॉल को कलाई को जरा सा मोड़ दे करके ये बॉल को यॉर्कर किया जा रहे हो, तो वो जो यॉर्कर बॉल आवेगी वाकू कहां से नेगोशिएट करना बैट रख के, वो वाकू परफेक्ट ख्याल में आना चाहिए. नहीं तो वो यॉर्कर स्टाइल की बॉल को नेगोशिएट नहीं कर पाएगा बैट्समैन, ये तकलीफ खड़ी हो जाएगी. अब जैसे गुगली आती हो, ये सब गेंद के प्रकार है. तकलीफ यह है कि गेंद डालने वाले जो है वो एक्सपर्ट होंगे, पर बैट वाले जो है सो सीधा लेके खड़े होए, क्या हालत हो, ये परिस्थिति हो जाए. कहने को मेरा कोई व्यंजना नहीं है. मेरे मतलब ये है कि बहुत धीरज से टाइमिंग देखी जाए कि कहां सही समय है, और सही समय पे वाकई सही संकेत के द्वारा बड़ी मृदु और मधुर भाषा में जब बात कह दी नहीं जाए, देयर इज नो रीजन कि आउट ऑफ 10 इंस्टेंसेस 9 इंस्टेंस में यस लिखी गई है और वो कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना पड़े. उनको मालूम है कहने वाले इनको कि हमें 9 वक्त हाँ आएगी, चलिए इट इज प्री एज्यूम्ड, इट इज प्री एज्यूम्ड. वाकु शास्त्र कहे कि कांता सम्मिततया उपदेश युजे काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये.
तो ये कांता सम्मिततया ये उपदेश की तीसरी विधा है। तो राजाज्ञावत और मित्रवद और कांता सम्मिततया जो उपदेश का प्रकार है वो तीन तरह को है। शास्त्र को प्रयोजन एक ही है। शास्त्र ये कह रहे है कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणादिवत। मनुष्य को राम के जैसे श्री राम ने अपनो जीवन नैतिकता सु अपन को भूतल पे प्रकट होकर दिखायो, ऐसे ही हमको भी नैतिकता सु जीनो चाहिए। रावण इत्यादि की तरह अनैतिकता सु नहीं जीनो चाहिए। ख्याल आयो कि नहीं? या लिए राम के संपूर्ण जो चेष्टाएं हैं श्री राम की, उनको लीला नहीं कहे गयो, राम अयण कहे गयो। और कृष्ण की अयण नहीं है, कृष्णायण नहीं है, वो कृष्ण लीला है। या लिए लीलाएं स्मरण करने के लिए होए हैं, चिंतन करने के लिए होए हैं, श्रवण करने के लिए होए हैं, सुनाने के लिए, श्रावण करने के लिए होए, पठन पाठन के लिए होए। और अयन रास्ता तो केवल चलने के लिए होवे, अनुकरण के लिए होवे। या लिए श्री कृष्ण ने जो कियो वो मनुष्य नहीं कर सके, वो पुरुषोत्तम की ही सामर्थ्य है। और राम ने जो कियो वो मनुष्य को करना चाहिए, इतना भेद है। श्री राम को अनुकरण करना चाहिए और श्री कृष्ण को अनुस्मरण करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ख्याल है ना? तो तीन उपदेश की विधा भाई, वेद, शास्त्र और तो काव्यन में भी अपने यहाँ जितने भी काव्य हैं, एक तो कोई भी काव्य जो काव्य देव संबंधी नहीं है उनको अपने यहाँ काव्य नहीं माने जाएगा, काव्य को आभास माने जाएगा। तो काव्य को यद्यपि अपने यहाँ लौकिक कोटि में रखे गए है, तथापि काव्य को प्रयोजन इतना ही है कि काव्य भी अपन को सन्मार्ग चलना सिखावे, बस इतनी ही वाकी उपयोगिता है। वाके अलावा जो काव्य के प्रतिपादित अर्थ हैं उनको धर्म में बहुत उपयोग नहीं है। या लिए श्री महाप्रभु काव्य इत्यादि को प्राधान्य नहीं देने। ये बात तीसरा टॉपिक बताया गया है। चौथा टॉपिक ये है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो भी हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि श्री वाल्मीकि रामायण भी पाप नाशक है, पाप दूर करने वाली है। और या लिए श्री महाप्रभु प्रमाण के रूप में श्री वाल्मीकि रामायण को भी स्वीकार रहे हैं। पांचवा पॉइंट वहां में यह है कि और जितने भी जैसे दर्शन में अपन ने तर्क ऊह प्रधान इत्यादि जो दर्शन देखे, तो ये अन्यान्य जो दर्शन है, जो दर्शन हमको हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष में उपयोगी नहीं है, उनको भी महाप्रभु प्राधान्य नहीं बतावे और उनमें व्यवस्था बतावे कि कौन सा दर्शन स्वीकार्य है और कौन सा दर्शन स्वीकार्य नहीं है। उदाहरण के रूप में जाकी चर्चा यहां अभी आगे आवेगी, सांख्य और योग, ये दो भी जो हैं अपने शास्त्र में तीन प्रकार के बताए गए हैं, वो मैं वह टॉपिक पे बताऊंगा। तो तीन प्रकार के इनमें से जो उत्तम कोटि है सांख्य योग की, वो अपन को स्वीकारनी चाहिए, यानी वो अपन को स्वीकार्य है, और जो कोटि हैं वो अपन को स्वीकार्य नहीं है। ये मैं तीनों की आगे जब वो टॉपिक आवेगा तब समझाऊंगा। ये बात बताए तो बस ये टॉपिक वेदांग में है, ये तुम नोट कर लीजिए। या को चाहोगे तो एक ग्राफ और बना दूंगा, बाकी ये 5 पॉइंट है यहाँ के कुल मिलाकर के। ठीक है, अब हमारा दूसरे नंबर के चार्ट में से तुम देख लो, ये प्रमाण प्रकरण कंप्लीट हो गया अपना हमारा। ठीक है, अब प्रमेय पे आ जाए अपन। देखो, प्रमेय में दो बातें समझाई गई हैं। चार्ट नंबर 2, वहां में जमनी बाजू प्रमाण के बाद प्रमेय में 2 उपभेद हैं। ठीक है, कारण आदि, तो वह चीज को नोट कर लो। एक तो प्रमेय का मतलब है प्रमाण के आधार पे अपन जा वस्तु को, पदार्थ को, सत्य को, हकीकत को जानने को प्रयास कर रहे हैं, वो प्रमेय है। जानने वाला प्रमाता, जाको जानना चाह रहे हैं वो प्रमेय, जाके माध्यम से जान रहे हैं वो प्रमाण, और जो जान रहे हैं वो प्रमा। चलो
देखो कारणादि त्रिभुज, तो कारण, कार्य और स्वरूप, ये तीन शब्द लिखो। कारण, कार्य और स्वरूप। जैसे ये स्थूल जगत को कारण प्रकृति है, सत्व रजतम प्रधान प्रकृति स्वरूप वाली। अक्षर ब्रह्म में से 5 वस्तु उनको आविर्भाव, पहले 5 अवस्था, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और प्रकृति के फिर 28 तत्व प्रकृति के सहित, तो 28 के 28 तत्व जो है वो कारण कोटि में है। उनमें से कुछ कार्य कोटि के भी आएंगे, वो बात मैं अभी चर्चा सब नहीं कर रहे हूं, पर मूलतया उनको अपन कारण कोटि में माने तो ऐसे एक कारण कोटि है। और कार्य, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में बहुत सारे कार्य हैं जो कारण में से उत्पन्न भय हैं, ठीक है ना, तो कार्यों की गिनती नहीं करिए क्योंकि असंख्य है, वो असंभव है। और स्वरूप यानी सब सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, और परब्रह्म की 2 स्वरूप अवस्थाएं अंतर्यामी और अक्षर ब्रह्म, ये स्वरूप कोटि के हैं। तो प्रमेय में जो पहली ब्रांच है, शाखा है, वहां में 3 तरह का विवरण है। कारण कोटि क्या है, कितने कारण हैं, कार्य असंख्य हैं, और स्वरूप कितने हैं, क्या रूप स्वरूप की व्यवस्था बताई गई है। वो ये कारण, कार्य और स्वरूप कोटि तीनों स्पष्ट हो गई। अब बची जो बात है वो प्रमेयत्व उपाधि। अब प्रमेयत्व उपाधि में पॉइंट लिख लो। एक शास्त्र में शब्द है ख्याति, ख य में मिला के दीर्घ मात्रा लगा के और ति, ख्याति। ख्याति को मोटो नाम, ख्याति इज इक्वल टू ज्ञान। अब या कि थोड़ी सी बात समझ लो, या मैं ज्यादा बहुत सूक्ष्म कहीं या कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स या पारिभाषिकता मुझको नहीं बतानी है। हमको अस्मद आदि को ज्ञान कैसे हो रहे हो और ज्ञान होने में कहां तकलीफ है। जहां हमको यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहे हो, बोध, मेरी बात समझ में आई, यथार्थ बोध कैसे संभव है और कहां यथार्थ बोध नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। जैसे अगर हमारे पास रजत है, रजत को एक टुकड़ा, और वहां में रजतत्व मौजूद है, यानी चांदीपनो, चांदीपणु, जेमा रजत को तुम चांदी को क्या कहोगे, जैसे जेम सोनाમાં સોનાપણું હોય, એટલે સોનામાં જો ખરેખર સોનાપણું હોય તો એ સોનાનું यथार्थ ज्ञान કહેવાય। इतनी बात मेरी ख्याल में मोटे उदाहरण के रूप में। तो यथार्थ ज्ञान हमको बोध कैसे हो रहे हो और यथार्थ बोध कहां नहीं हो रहे हो, या कि जो टोटल कंप्लीट थियरी है वह का नाम है ख्यातिवाद। और याकू तीसरे स्कंद में बहुत विस्तार से बताया गया, तृतीय स्कंद की श्री सुबोधिनी में। और याकू अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख रखो द थियरी ऑफ परसेप्शन, हाउ डू वी कम टू नो अबाउट एनीथिंग विच इज नोएबल। तो थियरी ऑफ परसेप्शन या ज्ञान प्राप्त करने की जो ज्ञान प्राप्ति को जो प्रकार है, इन्हें ज्ञान प्राप्ति नो प्रकार कहिए कि थियरी ऑफ परसेप्शन कहिए अथवा ख्यातिवाद कहिए, बात एक अच्छी। मोटे तौर पे कह रहे हूं, ये विवेचन पंडितन के लिए नहीं है, पंडितन के संग दूसरी भाषा कही जाएगी। तो ये ख्यातिवाद ख्याल है ना, या लिए प्रत्यक्ष એટલે इंद्रियों वडे
યથાર્થ બોધની કેટલી સંભાવના છે અને ક્યાં સુધી નથી, કેવી રીતે નથી, આ બધો જે વિષય બતાવ્યું છે એ પહેલો એક તો વિષય પ્રમેયત્વ ઉપાધિભૂત विषयों में આવ્યું। एक बात कि अपन को ज्ञान कैसे हो गए, ठीक है ना, यानी शास्त्र में આ બધું પ્રમેય આપણો જે આપણા માટે જે પ્રમેય છે એ ક્યાં રહેલું છે? શાસ્ત્રમાં। અને શાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તો ચાલશે નહીં, એટલે કેવી રીતે આપણને શાસ્ત્રથી પ્રમેયનો બોધ થાય છે અને તે બાબતમાં ખ્યાતિનું શું સ્વરૂપ છે વગેરે, એનો એક જે દિગ્દર્શન છે, દિશા સૂચન એ કહેવામાં આવ્યું છે। दूसरो वैदिक शब्दन को क्या स्वरूप है, ये दूसरा टॉपिक है। दाखला तरीके वर्ण जेने આપણે રેખાઓથી લખીએ છીએ, ક ખ ગ વગેરે, બરાબર ને? આ રીતે ગુજરાતીમાં એક રેખા આપણે ખેંચીએ અને પછી વચ્ચેથી એક નાની રેખા મૂકી દઈએ એટલે ક થઈ જાય। એટલે આ રેખાઓથી જે લખાય છે અને જેનું ઉચ્ચારણ થાય છે ધ્વનિથી, એ વર્ણ, એ વર્ણ વગેરે ભગવદ રૂપ છે અથવા કંઈક વિકાર છે, બીજી વિકૃતિ છે, આ બધી બાબતનો વિચાર આ બીજા ટોપિકમાં થયું છે। तीसरी बात, जैसे वादिन मैंने थोड़ी कही थी कि वर्ण शब्द और वाक्य इत्यादि में वाचकत्व है या द्योतकत्व इत्यादि है, इन सबको विचार जो है उनको अर्थ यानी शब्दों अर्थ केवी रीते घटित थाय छे, એટલે શબ્દનો અર્થઘટન કેવી રીતે થાય છે એ બાબતનો વિચાર છે। चौथी बात ये बताई गई है कि पुराण जो है वो वेद तुल्य है, यानी वेद की सरखामणीમાં છે। पांचवो टॉपिक ये है कि लौकिक वाक्यन को स्वरूप क्या है, जैसे वैदिक वाक्यन को स्वरूप बताया, ऐसे लौकिक वाक्यन को स्वरूप क्या है ये बताया गया है। और वाक्य बाद ये ध्वनि यानी ये वर्ण जो बोल रहे हूं मैं, उनकी ध्वनि तो आ रही है ना अपने में, तो ये ध्वनि क्या विलीन हो जा रही है या क्या है, और विलीन हो गई तो यही तरीका से क्या वैदिक शब्दन की ध्वनि भी विलीन हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है कि क्या है, या रूप में ये शब्द वर्ण इत्यादि शब्द इत्यादि नित्य है कि अनित्य है, क्या है, इन सब स्फुट विचारण को किया गया है। यानी ये सूची सुना रहे हूं कि तुमको ध्यान आवे कि अपने यहाँ कितनी डेप्थ है सारे विचार की। लौकिक शब्द नित्य है कि नहीं है, अपन जो बोल रहे हैं उनमें और वेद के शब्दन में क्या फर्क है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब विचारण में या में भयो है। तो ये वेदांग आदि प्रकरण अपनो कंप्लीट हो गयो। इन या तुम्हारे यानी के बाद और भी टॉपिक है यहाँ में, हमें लगभग 10-11 विषय को। अरे यहाँ से बंद करा ना भाई, कौन है यहाँ? ओ भद्रेश, जो मैंने 5-6 उदाहरण दिए, ऐसे 11 टॉपिक है यहाँ में दिए गए हैं। लिख लो तो लिख रखो 11 विषय को या तरीका से, यही ऐसे ही शब्द हैं, शब्दन के वर्णन के और इत्यादि, क्योंकि इन सबन में क्या इनके स्वरूप हैं सही। वाक्य बाद अब अपना ये प्रमाण प्रकरण कंप्लीट होके प्रमेय प्रकरण कंप्लीट हो गए, या कि 2 मुख्य विभाजन। तुमको इतना ख्याल आना चाहिए कि प्रमेय के दोनों शाखान में, प्रमेय प्रकरण के 2 जो वाक्य सब टॉपिक्स हैं, उन वाक्य उपभेदन में क्या कहे गए है, इतना अपन को ख्याल होना चाहिए। तो एक में कारण कार्य और स्वरूप को विवेचन किया गया, और दूसरे में ये शब्द इत्यादि इनकी और इनकी सारी बात की व्यवस्था करी गई है। लौकिक अलौकिक नित्य अनित्य ये सब बात विचार करी गई है। फल साधन, अब फल साधन में देखो क्या लिख रहे हो वहां
कलिकालगत वर्णाश्रम अधिकारी अनधिकारी फल साधन निर्धार। देखो, एक मेन टॉपिक जो है फल साधन में, वो वर्णाश्रम अधिकृत जन श्रौत फल साधन निर्धार, या कुछ समझ लो, यानी वर्णाश्रम के जो अधिकारी हैं। देखो, एक बात और समझाऊं तुमको। अब के मैं इनमें संख्या भी डलवा दियो करूंगा। नहीं, हाँ, पेज नंबर आ जाएंगे। कहाँ ख्याल नहीं। ये वाल्लभ मत नाम को चौथे नंबर को चार्ट निकाल के रखो। अरे, वल्लभ मत नहीं, हाँ सॉरी, वो एक आगे निकल गया। ये वासु पहले वाला चार्ट, समस्त जो शास्त्र की व्यवस्था जहां श्री महाप्रभु ने बताई है वो। यानी दूसरे नंबर को चार्ट है ये, तीसरे नंबर को, ત્રીજા નંબરનો ચાર્ટ, એટલે ફ્લેપથી ગણીએ તો ચોથા નંબરનું પાનું, મેઇન ફ્લેપથી ગણીએ તો ચોથા નંબરનું પાનું છે. મળી ગયું? બધાને મળ્યું? આમાં જુઓ, સૌથી પહેલા વેદોક્ત પ્રકારમાં દ્વિજ અધિકારક એવું લખ્યું છે ડાબી બાજુ. તે પછી એની જ લાઈનમાં આગળ આવો તો સર્વ અધિકારક લખ્યું છે. બોલો. એનાથી આગળ જુઓ તો ચતુર્વર્ણ અધિકારક લખ્યું છે અને એના આગળ ફરી જુઓ તો સર્વ અધિકારક લખ્યું છે. એ છેલ્લો જે સર્વ અધિકારક છે એ પુષ્ટિ માર્ગ માટે છે. ખ્યાલ આવ્યું ને? હવે અગેન હું આ વાત સમજાવું તમને કે હું શું કહી રહ્યો છું. આ ફલ સાધન પ્રકરણના પહેલા ટોપિકમાં શ્રી મહાપ્રભુએ એ સમજાવ્યું છે કે વર્ણાશ્રમના કોણ અધિકારી છે ને એ કેવી રીતે પોતાના મોક્ષ સુધી પહોંચી શકે છે. ના સમજાઈ વાત? તો કુછ સમજાઈ? બોલ, क्या समझे तू? यानी इंक्लूडिंग वो द्विज अधिकार सहित, यानी द्विज अधिकार और चातुर्वर्ण, यानी चतुर्वर्ण को अधिकार. जैसे यहाँ में जो दो टॉपिक आए, सबसे पहला विभाजन द्विज अधिकारक और तीसरा डिवीजन चतुर्वर्ण अधिकारक, ये दो की बात कर रहे हूं. वर्ण के सिवाय भी वर्णेतर लोग हों ना, शूद्रन सुबी बाह्य लोग हों ना, जिनको शूद्र कोटि में भी नहीं गिने गए हो एक तरीका से. और वाक्य अलावा जो और भी कोटि हैं, जैसे भक्ति की कोटि, देव असुर यानी राक्षस इत्यादि सबन को है. अब जैसे प्रहलाद हते वो कौन हते? वो असुर हते. तो भक्ति की कोटि सर्वाधिकारक है, तो वो सर्वाधिकारक की चर्चा लंबी जाएगी थोड़ी, पर मूल में अपन इतना समझें कि चतुर्वर्ण जो है वो शूद्रेतर भी प्रजा मानी गई है. समझे ना? अब ये जितने भी म्लेच्छ हैं वो म्लेच्छ अपन ने वकु स्थूल दृष्टि से, जैसे अपन नीरज को अर्थ कमल ही करेंगे, नीरज के बहुत सारे अर्थ हैं. ऐसे म्लेच्छ को मतलब केवल एक जाति विशेष नहीं है. म्लेच्छ को मतलब है जो वेद विमुख है, वेद बाह्य है. जो वेद बाह्य है वो सब के सब म्लेच्छ है.
पर अब वो वहां में ऐसा भयो ना पंडित जी, देखो म्लेच्छ में जाएंगे परंतु वो म्लेच्छ फिर अपने यहाँ आत्मसात तो किए गए ना समाज में, और वो ये आत्मसात करने की बात श्रीमद् भागवतकार खुद कह रहे हैं, यानी वो चर्चा एक पृथक है, वो पृथक चर्चा हो जाएगी। तो मेरी बात समझियो, દ્વિજ અધિકારક એટલે અત્યારે ફરી આપણે દ્વિજથી માત્ર બ્રાહ્મણને ગણીએ છીએ એવું નથી, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ ત્રણેય દ્વિજ કહેવાયા, એટલે દ્વિજ અધિકારક અને ચતુર્વર્ણ અધિકારક એ બંને વસ્તુ વ્યવસ્થાને શ્રી મહાપ્રભુ આ પહેલા ટોપિકમાં સમજાવે છે આમાં। હવે એમાં ભેદ કરી દઈએ બંને, કેમ કે બે સેક્શન એમાં આવશે, પહેલું અને બીજું, સમજાયું? એટલે પહેલું જે છે સેક્શન એ બ્રાહ્મણ પ્રધાન વ્યવસ્થા આખી સમજાવી કે બ્રાહ્મણને કેવી રીતે અધિકાર હોય છે અને શું એને આગળ કેવી રીતે એ વધી શકે છે, અને બીજા પણ એના સાથે જે ઉપયોગી એની સાથે જોડાયેલા જે વિચાર બિંદુઓ છે એ વિચાર બિંદુઓના ઉપર પણ શ્રી મહાપ્રભુએ ત્યાં કથન કર્યું છે, શ્રી મહાપ્રભુએ ત્યાં કહ્યું છે। એટલે આ પ્રમાણે આ વર્ણાશ્રમની પહેલા એટલે કે આ દ્વિજ અધિકારક વગેરે બધી વ્યવસ્થા શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવી, અને કલિકાલગત વર્ણાશ્રમ અધિકારી અનધિકારી ફલ સાધન નિર્ધાર એના પ્રારંભમાં જે માર્ગ બોધમાં તમને આખો વિષય અપાયું છે, ભક્તિ માર્ગ જેમાં કહેવાયું છે બધું, શ્રી મહાપ્રભુએ કહ્યું છે એ બધો વિષય આ બીજા ટોપિકમાં આવી જાય છે। તેથી ફરી એકવાર કહું કે જે આ ચાર્ટમાં જે વાણીનું વિભાજન અને એના ઉપર સાધનનું વિભાજન શ્રી મહાપ્રભુએ સંપૂર્ણ કર્યું છે, આ જે રીતે દ્વિજ અધિકારકમાં પણ પછી મેં એના પેટા વિભાગ સમજાવેલા છે, આ બધું જ જે વિભાજન છે એટલે આ દ્વિજ અધિકારક અને ચતુર્વર્ણ અધિકારક આ બેઉ વ્યવસ્થા લીધેલી છે, જેમાં દ્વિજ અધિકારક અને ચતુર્વર્ણ વ્યવસ્થાને બંનેને લઈને અને પહેલા ટોપિકમાં એટલે પહેલા વિભાજનમાં શ્રી મહાપ્રભુએ એનું વિવેચન કરીને સમજાવ્યું છે। એના અંતર્ગત છેવટે સાંખ્ય યોગ વગેરે પણ અત્યારે મનુષ્યને સહાયભૂત છે કે નહીં એ બધો જ વિચાર આવી ગયો છે, અને એ વિષયનો ઉપસંહાર કરીને બીજો એનો વિભાજન છે એમાં અત્યારે વર્તમાન સમયમાં અધિકારી અને અનધિકારીની વ્યવસ્થા સમજાવીને ભક્તિ માર્ગથી કેવી રીતે કલ્યાણ છે એ બધો વિષય સમજાવ્યો, અને તે જ સંદર્ભમાં આપણને સંપૂર્ણ ભક્તિ માર્ગની માહિતી શ્રી મહાપ્રભુ આપે છે, જે માર્ગબોધમાં મેં કરાવી દીધું છે। બરાબર છે? એટલે આ બે વિભાજન, અને ત્રીજા ટોપિકમાં એના ત્રીજા વિભાગમાં હા એ જુદા જુદા દેવોની ઉપાસના અને જુદા જુદા જે અન્ય કલ્યાણના માર્ગો બતાવેલા છે તે બધાથી ભિન્ન ભિન્ન દેવતાઓની ઉપાસના અને જુદા જુદા રીતે ભિન્ન ભિન્ન દેવ ઉપાસનાથી થતા ફળ, તે સિવાય જે શાસ્ત્રમાં બતાવેલા અન્ય સાધનો છે કલ્યાણ પ્રાપ્તિના, તે કલ્યાણ પ્રાપ્તિના ઉપાયો કેટલા કારગર છે અને કેવી રીતે છે અને એની શું વ્યવસ્થા છે એવી પ્રકીર્ણ શબ્દ तुम्हारे गुजराती में है कि नहीं है ना, एवी क्या मतलब है प्रकीर्ण को? हाँ वो तो तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेजी शब्द तो मैं कब को दे देता, परचूरण। हाँ ये बात, ऐसे जो प्रकीर्ण विषय हैं और मनुष्य के कल्याण के, वो प्रकीर्ण विषय को जो निर्णय किया है वो निर्णय या तीसरे सेक्शन में है, तीसरे विभाग में। मेरी बात ख्याल आई?
એટલે पहले मैं मूल द्विजाधिकारक इत्यादि सारी व्यवस्था बताई, वर्णाश्रम की व्यवस्था समझाई कि कौन सी चीज संभव है और क्या संभव नहीं है, कौन सा साधन हम कर सकें कौन सा नहीं कर सकें। दूसरे में अधिकारी अनधिकारी की व्यवस्था समझा के भक्ति मार्ग में सबकी अधिकारिता और भक्ति मार्ग से मनुष्य को कल्याण और वास्तविक कल्याण जो है वो कैसे है या में श्रेष्ठतम गति, वो भक्ति मार्ग की पूरी व्यवस्था समझा दीनी। और प्रकीर्ण विषय को लेके अन्य अन्य अनेक देवताओं की उपासना और जो और भी मनुष्य के कल्याण के मार्ग कहे गए हैं, उन सब पे श्री महाप्रभु ने अपनो अभिगम दियो है, अपनो ओपिनियन दियो है, अपनो अभिमत दर्शायो है कि मेरी या विषय में ये सलाह ये विचार है मेरे। और अंत में उपसंहार में या बात को फाइनल पॉइंट पे ले जाके यही प्रकीर्ण जो टॉपिक है वाकू कि देयरफॉर ये सब कुछ भी नहीं करके और मनुष्य को प्रेम प्रधान यानी प्रेम भक्ति मार्ग के पथ पे चलना चाहिए। प्रेम भक्ति मार्ग यानी पुष्टि भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। ख्याल आया? और वाके दो भेद बताए, तदीयता और तदाश्रय, यानी प्रपत्ति मार्ग और भक्ति मार्ग। ख्याल आ गया ना? सेवा के जो सेवा और कथा ऐसे दो पक्ष भय, और वाके बाद नीचे जो निर्णय दिया गया है ये दोनों चीजें, दोनों तीनों चीजें मैं जब उचित समय आएगा वह वक्त में तुमको समझाऊंगा। पर अगर अब हम विहंगम दृष्टि से देखें तो लगभग हमारे पास शास्त्र को कंप्लीट व्यू आ गया हो। संपूर्ण शास्त्र प्रमाण प्रमेय साधन और फल साधन और उपसंहार में विभाजित है। प्रमाण के जो 4 हिस्सा हैं वो हमने देख लिए टॉपिक वाइज, प्रमेय के 2 प्रधान विषय हमने विभाग देख लिए, फल साधन में 3 प्रकार से जो व्यवस्था दी गई है वहाँ पे हमने थोड़ी दृष्टि समझ डाल दी, और उपसंहार में ये समझाया गया कि जितने भी साधन और फल और साधन की व्यवस्था है अंततोगत्वा वर्तमान समय में हमको उत्तम फल दिलाने में सब के सब असमर्थ हैं। उत्तम फल हमको मात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रपत्ति शरण अथवा भक्ति से ही मिल सके है। ये सारे पूरे संपूर्ण शास्त्र को ये पूरा एक बर्ड्स आई व्यू है, विहंगम दृष्टि है, सर्व सिद्धांत संग्रहम। मैं वहां कहना चाह रहा हूं मेरा विषय क्या है, सर्व सिद्धांत संग्रह की बात समझानी। क्योंकि अपन अब आके जो ठहरे हैं वो शास्त्र शब्द पे ठहरे हैं। देखो, मोक्षे चत्वारी शास्त्राणी यहां चल रहे हैं अपन। मोक्षे चत्वारी शास्त्राणी 5वें नंबर की पन्ना पे श्लोक बोल रहे हूं मैं। ये 5वें नंबर पे जो ये 5वें ही नंबर को जो श्लोक है, ये या की संख्या भी 5 और 6 है, तो या में जो शास्त्र मोक्षनी बाबत में 4 शास्त्र છે। અહીંથી આપણો મેઇન ટોપિક પ્રારંભ હવે થયો। જ્યારે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ વગેરેની વાત જ્યારે પૂરી થઈ ગઈ ત્યારે, એટલે અહીંથી જે વાત શરૂ થાય છે ત્યાં મોક્ષ અને શાસ્ત્ર આ બે જે મહત્વના શબ્દ આવ્યા તે બાબતમાં મેં તમને શાસ્ત્રનો સંપૂર્ણ વ્યૂ શ્રી મહાપ્રભુની દૃષ્ટિએ અત્યારે સમાપ્ત કરીને ફાઇનલ અહીંયા આ પોઈન્ટે પહોંચી ગયા। નીચેના જે મૂળ ભક્તિના અને પ્રપત્તિના ટોપિક છે એને આપણે આગળ સમજશું, પણ અહીં સુધી આપણી આખી વાત થઈ ગઈ। એટલે શાસ્ત્રમાં કેવી રીતે મોક્ષની બાબતમાં કહેવાયું છે એ શ્રુતિની વ્યવસ્થા, એટલે કે વેદમાં કેવી રીતે કહ્યું, સ્મૃતિઓમાં કેવી રીતે બતાવવામાં આવ્યું, પુરાણમાં કેવી રીતે કહેવામાં આવ્યું, તે પછી પુરાણ સિવાય જે એના જે વેદાંગ છે એ વેદાંગનો ઉપયોગ વેદ વગેરે અને અન્ય શાસ્ત્રોમાં કેવી રીતે થાય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અંતતોગત્વા મોક્ષ તરફ વળે છે। એટલે એ ચારે ટોપિક પ્રમાણના બતાવીને પ્રમેય જે આપણને જાણવું છે અને જેના માટે મનુષ્ય પ્રયાસ કરી રહ્યો છે અને જે જાણવાથી એ મોક્ષ તરફ વધે છે એ વાત પ્રમેયમાં સમજાવી। ફળ સાધનમાં કયા સાધન એને ખરેખર મોક્ષ અપાવી શકે છે અને એ મોક્ષરૂપી ફલ એમાં કેવી રીતે તારતમ્ય છે, એટલે ઓછા વત્તાપણું કેવી રીતે છે
કયા ફળના પ્રકારો ઉત્તમ છે અને કયા ફળના પ્રકારો યોગ્ય નથી, અને ખરેખર કયા સાધન ફળ અપાવવામાં સમર્થ છે અને કયા સાધન ફળ અપાવવામાં સમર્થ નથી, એ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા ત્યાં બતાવી, ફલ સાધન વ્યવસ્થામાં બતાવી અને ભક્તિ માર્ગનો નિર્દેશ કર્યો. અને તે પછી આ પ્રમાણ, પ્રમેય, ફળ સાધન અને ઉપસંહારમાં ઉપસંહારથી પૂર્વ નાના કર્મ વગેરેની પણ વ્યવસ્થા કહી, નાના દેવતા વગેરેની કે જે અન્યાન્ય દેવતાઓની ઉપાસના કરે છે અથવા અન્યાન્ય ક્ષુદ્ર કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અથવા અન્યાન્ય ઉપાસનાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અથવા કલ્યાણ માટે જુદા જુદા બીજા રસ્તાઓ શોધે છે, આ બધાનો અંતતોગત્વા કોઈ તાત્પર્ય નથી. અને ઉપસંહારમાં આ તાત્પર્યનું સ્પષ્ટીકરણ કરીને આપ્યો કે તાત્પર્ય એ છે કે આ બધા ઉપાયોમાં પ્રવૃત્ત ન થતા ખરેખર વિવેકી વ્યક્તિએ શરણ માર્ગ અથવા ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. આ શાસ્ત્રનો વિહંગમ ઉપાય નહીં है. ठीक है ना? ज्ञान, कर्म और भक्ति, या कर्म, ज्ञान और भक्ति, ऐसे बोले अपन. अब कर्म और ज्ञान दोनों की जो स्थिति है वह को पहले अपन बहुत सूत्र रूप में समझ लें. कृष्णाश्रय को विषय जिनको ध्यान में होए, मैं वहां से संबंध जोड़ के बताऊं, क्योंकि कृष्णाश्रय हमारे सबन के पाठ को ग्रंथ है, करके वो बात बहुत सीधी समझ में आवेगी. तो कृष्णाश्रय में हमने जो 6 साधन हैं कर्म के लिए जरूरी, देश काल आदि, वो 6 साधन को श्री महाप्रभु वहां निषेध कर रहे हैं कि आज के युग में ये 6 साधन संभव नहीं है. और या कारण से अब कर्म मार्ग कोई को भी जो उत्तम फल है वह उत्तम फल तक नहीं ले जा सके. ख्याल में आई ये बात मेरी? इतना हमको ध्यान कर्म मार्ग के विषय में रहना चाहिए. हम वह को कृष्णाश्रय से सीधा जोड़ दें. वैसे श्री महाप्रभु ने निबंध में वह की बहुत विशद चर्चा करी है, पर वो जब जब या के अवसर उपस्थित होंगे तब तब अपन चर्चा करेंगे. जैसे एक मोटी बात बताऊं कि मोक्ष को विषय अपने आप में एक बहुत ही उलझा हुआ विषय है. हमें भी मोक्ष के प्रकार, कर्म मार्ग सु मोक्ष, जैसे कर्म मार्ग को त्रिविध मोक्ष मैंने यहाँ मोटे तौर पे बताया, ज्ञान मार्ग सु क्या मोक्ष है, और अमुक जो प्रश्न हैं. अब जैसे अगर हम ब्रह्मानंद कह रहे हैं तो ब्रह्मानंद और आत्मानंद में क्या फर्क है, और परमानंद अवाप्ति में, परमानंद प्राप्ति में क्या फर्क है. तो ऐसे आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद इत्यादि ये शब्दन के जो थोड़े भेद हैं, इनके लिए अपन को एक स्वतंत्र सत्र चाहिए कि जहाँ में अपन इनकी थोड़ी चर्चा करें. क्योंकि कोई भी विषय को तब उठाना चाहिए कि जब थोड़ा भी अपन वहाँ के साथ सुनने और सुनाने को न्याय कर सकें. यदि हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो हम मोटे तौर पे कुछ चीज़ इनको जानते चले जाएं. जैसे मोक्ष के हमको थोड़े थोड़े अंदाज हैं, उतने अंदाज तक भी हम अगर अपने आप को सीमित रख के और समझने को प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है. यानी जैसे वो विषय मैंने बहुत ज़्यादा विशद नहीं किए है, तो ऐसे कर्म मार्ग के विषय में भी यहाँ बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन वाकू अभी न समझ देख के हम अपने बालबोध को समझने के लिए जितना अपेक्षित है कृष्णाश्रय के साथ वाको संबंध लगावें, और कृष्णाश्रय के साथ संबंध लगा के सर्व मार्गेषु नष्टेषु क्रमसु जो कारिकाएं हैं उनमें क्रमशः जो देश काल इत्यादि को निषेध कियो, और द्रव्य इत्यादि सब, यानी देश काल, द्रव्य, कर्ता, मंत्र इत्यादि सबको निषेध करके समझायो कि अब वैदिक कर्म के आश्रय से अपन उत्तम गति नहीं पा सके मनुष्य, या लिए भगवद आश्रय करना चाहिए. ये बात समझाई गई. मोटे तौर पे मैं ये समझाना